Once again, I am present with the chapter number 6 of mathematics. This is the second part of chapter number 6, and the title of this chapter is what? Division. And in the first part of this chapter already I told. In second video we will learn about division and sharing, and we will learn about division using the number line. So let's start this class, and we will learn through this video. I am going to teach from from page number 109, 110, 111. Page number 109 to 111 हम लोग इस पेज में जो जो भी सब टॉपिक है, पेज नंबर 109, 110, 111 we will learn. So question is what? Subtopic is division and sharing. Division and sharing. Sharing means what? Share करना means उसको बांटना. I have written a question on board. 5 boys buy 10 sweets. They want to share them equally. Then how many sweets will get each boy? हर एक बॉय को, हर एक लड़की को कितना कितना स्वीट्स मिलेगा? How many number of boy? 5. Total number of sweets 10. Equally means what? Equally means बराबर. Equally means बराबर, किसी को कम नहीं किसी को ज्यादा नहीं. तो इसके लिए क्या करेंगे? तो टू फाइंड आउट, अगर वो सब एक साथ शेयर कर रहे, बांट रहे और इक्वली मिलना चाहिए, तो वी विल डिवाइड 10. How many total number of sweets? Total number of sweets is 10. How many the total number of boys? 5. To find out the total number of sweets which get by what? Boy. प्रत्येक लड़के को कितना स्वीट्स मिलेंगे? तो 10 डिवाइडेड बाय 5. तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो पता चलेगा कि एक बॉय को कितने, एक लड़के को कितने स्वीट्स मिल रहे हैं. तो 10 डिवाइडेड बाय 5. टू फाइंड आउट द आंसर we will read the table of 5 to know that in how many time 10 comes. To find out the answer, we will read the table of 5 to know that 10 comes in how many times. So read the table of 5. 5 1 5, 5 2 10. What is answer? 2. 2 is our answer. मतलब 2 स्वीट्स जो है एक एक बॉय को मिलेगा. तो इस तरह से शेयर करके बना सकते हैं. अब आते हैं डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन. इसका एक और दूसरा भी एग्जांपल देते हैं. सपोज दैट 30. There are total 30 toys. 30 toys are there. अगर 30 toys है और उसको, अगर this is number of toys और this is number of given any object, अगर ये कोई दिए गए ऑब्जेक्ट का टोटल नंबर है, एंड
सिक्स स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अगर एक क्लास में टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉयज विल गेट इन ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को कितना कितना टॉयज मिलेगा। अब दिस इज द नंबर ऑफ टॉयज, ओके, एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो to find out the number of toys will get in each student, प्रत्येक स्टूडेंट को कितना कितना टॉय मिलेगा, we will divide 30 divided by 6, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर होगा। नाउ रीड द टेबल ऑफ 6, अब 6 का टेबल रीड करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। we will read the table of 6 to know that 30 comes in how many times, okay, so 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, what is answer 5, what is answer 5, so 5 is our answer, 5 होगा, प्रत्येक स्टूडेंट को कितना टॉय मिलेगा 5 टॉय। नेक्स्ट टॉपिक is division using the number line। Question number 1 is 9 divided by 3, 9 divided by 3 equal to what, equal to what, so first we will draw a line, and like previous thing we will mark on this line, start from 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, you can see that I have marked on this line, start from 0 and with 12, and question is 9 divided by 3, 9 divided by 3, अब जो है इसमें हम लोग को भरना है और यूज करना है इस नंबर लाइन। इन प्रीवियस चैप्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन we will start from the left hand side and we go to the right hand side. In subtraction we start from left hand side and first time go right hand side and again we will backward, but in division, in the case of division we will start from the right hand side, and we will come to left hand side, start from right hand side to left hand side, 9 divided by 3, to find out the answer we will read the table of 3 to know that 9 comes in how many times of the table of 3, so read the table, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, what is answer 3 is our answer. It means this is total number of this is group and this is number of things in each group। अब इसको दिखाने के लिए नंबर लाइन में what is the total number of any object, 9, so start from 9, we will start from 9 and come backward, and we will come backward to reach the, it means अब हमको 3 का ग्रुप बनाना है, we start from 9, okay, so start from 9 and we will reach what 6, again we will start 6 and we will reach 3, and again we will start 3 and we will reach on 0, and put the arrow mark, इसमें भी हम लोग एरो मार्क लगाएंगे, और उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, उसका डायरेक्शन जो है, उसका फेस जो है वो 0 की तरफ होगा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, इस तरह से होगा।
So in each curved line is represent one group. प्रत्येक लाइन जो है वह एक एक ग्रुप को दिखा रहा है, और प्रत्येक ग्रुप में कितने कितने नंबर है? तीन तीन नंबर है। कितने कितने नंबर है? तीन तीन। स्टार्ट फ्रॉम 9 to 6, 6 to 3, 3 to 0। ओके, तो देखिए इन फर्स्ट ग्रुप में 0 1 2, इन सेकंड ग्रुप in first group start from 9 to 6, 6 to 3, 3 to 0। अब इसको अगर हमको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? हम लोग को इसको ऐसे लिखना है। तीन ग्रुप बना हुआ है। कितना ग्रुप बना? 1 2 3। वी विल राइट 3 2 1। सो ग्रुप में बांटे। कितना ग्रुप हुआ? 1 2 3, 3 2 1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू व्हाट? 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू व्हाट? अब 12 को डिवाइड करने के लिए 3 का टेबल पढ़ेंगे। वी विल रीड द टेबल ऑफ 3 टू नो दैट 12 इज कम्स इन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टेबल ऑफ 3। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? रीड द टेबल ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। व्हाट इज आंसर? 4। 4 इज आंसर। अब हम लोग को क्या करना है? तो समझिए दिस इज ग्रुप, और प्रत्येक ग्रुप में कितने कितने नंबर आएंगे? 4 4 नंबर आएंगे इन ईच ग्रुप। तो स्टार्ट बड़ी नंबर 12, स्टार्ट फ्रॉम 12। इस बार हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। जो नंबर बड़ा रहेगा ना उससे स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। बड़ी नंबर 12। So 4 4 times. So 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। और यहाँ did the table of 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। So start from 12 and we will reach on 9. Again we will start from 9 and we will reach on 6. Once again we will start from 6 and we will reach on 3, and once again we will start from 3 and we will reach on 0. So you can see that in each curved line represent one group, and once again we will put arrow mark. One group, two group, three group, four groups. So you can see that what is answer? 4. It means 4. Now you will write like this: 1 2 3 4. Okay, 4 3 2 1. So this is our answer. You can solve this question division using the number line like this. After division on number line, we will study or we will learn about some fill in the blanks related to division. Fill in the blanks. Fill in the blank. Page number 111. Page number 111. Suppose that 10 divided by 5 equal to what? 10 divided by 5. And one more thing, when we divide, there are 4 things in a divide. In a
question of division. But before solve, read the table of 5 to know the answer of this question. 5 की टेबल में 10 कितना टाइम्स में आता है, कितना टाइम्स में आता है वो हमारा आंसर होगा. 5 to the 5, 5 to the 10. हमारी आंसर 2. अब इसको जो है, अब देखिए जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं डिवीजन में जो है हर नंबर का एक अलग नाम है, ये मैं बता देता हूँ. ठीक है, पहले इसको हम दो तरीके से समझते हैं. 10 इसका एक अलग नाम है, 5 और ये जो हमारा आंसर आया ये सबको अलग अलग नाम से जानते हैं. जो ये 10 है, ठीक है. अब हम लोग देखिए डिवीजन को दो ये से लिखते हैं, एक डिवीजन लिखते हैं इस तरह से 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1. कुछ लोग यहाँ भी लिखते हैं, अगर यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ भी लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, आपकी जैसी इच्छा. अब इसको डिवाइड करते हैं. 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो क्या करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे और 5 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम्स में ये 10 आता है. तो 5 टू 10, ये 2 आया, या 2 लिखेंगे. यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरह से करके, इस तरह से करके लिख सकते हैं. ठीक है, मैं इस तरह से बता देता हूँ. तो 5 टू 10 आप क्रॉस भी कर सकते हैं या जीरो भी कर सकते हैं. इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं. अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर आया, यहाँ पर हाउ मेनी नंबर्स, देयर आर 4 डिफरेंट नंबर 10, 5, 2, 0. अब ये सब का अलग अलग नाम है, पहले उसको जानेंगे. दिस नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड. इसको क्या बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड. DIVIDEND डिविडेंड. इसको क्या बोलते हैं, इस नंबर को डिविडेंड. जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिवाइजर. क्या बोलते हैं उसको, डिवाइजर. DIVISOR. इसको क्या बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं. ये जो 2 आया, तो 2 हमारा जो आंसर है वो जो आया उसको बोलते हैं कोसेंट. क्या बोलते हैं, कोसेंट. क्या बोलते हैं, कोसेंट. लिखते हैं स्पेलिंग, स्पेलिंग लिखते हैं. इसको बोलते हैं QUOTIENT. QUOTIENT. इसको पढ़ते हैं कोसेंट. क्या पढ़ते हैं, कोसेंट. और ये 0 आया, यहाँ वाले नंबर को बोलते हैं रिमाइंडर. क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. रिमाइंडर. तो ये एक डिवीजन के क्वेश्चन में, डिवीजन के क्वेश्चन में अगर ये 4 डिजिट है तो 4 डिजिट का अलग अलग नाम है. जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, जिस बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिवाइजर. जिस नंबर डिवाइड करने के बाद जो हमको नंबर मिलता है, यहाँ वाले नंबर को बोलते हैं कोसेंट. क्या बोलते हैं, कोसेंट. और अगर कोई कुछ बचता है, अभी हम उसको पढ़ाएंगे आगे, तो इस नंबर को बोलते हैं रिमाइंडर. क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. ये 4 जो है, ये 4 नंबर का अलग अलग नाम है. अब जो है, अब इसको समझाते हैं. आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा. तो इसमें से 10 क्या है, 10 हमारा क्या है, डिविडेंड है. क्या है, DIVIDEND. ये डिविडेंड है. ये क्या है, 5. ये डिवाइजर है, DIVISOR. ये डिवाइजर है. और ये 2 क्या है, कोसेंट. कोसेंट है. क्या है, कोसेंट है. QUOTIENT.
जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब अगर सपोज दैट अगर हम वी हैव 10 balloons and we want to share it, we want to divide it in 5 groups, 5 groups में डिवाइड करना है। तो how many number of balloons in each group? तो 2 2 balloons each group में होगा, 2 balls each group में होगा, जो भी ले लीजिए। So this is our answer. 10 is called dividend, 5 is called divisor and 2 is called quotient। तो ये हम लोगों ने 3 जाना, क्योंकि जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फुली डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है। तो 2 मिलेगा, 2 बलून्स, 2 शीट्स, 2 बॉल्स, जो बोलिए वो सबको इक्वल मिलेगा, किसी को कम नहीं किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। We are studying fill in the blanks. You can see that I have drawn some boxes and some dots inside these boxes. So सबसे पहले हम लोग fill in the blanks सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, कितना कितना सर्किल मैंने छोटा छोटा करके टोटल बॉक्स में बनाया, उसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। So what is total कितना in first question? This is question number 1. How many circle? 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 circle. So first we will write 8. Now this is our dividend, ये टोटल नंबर ऑफ जो सर्किल है वो हमारा डिविडेंड है 8। Now you can see that डिवाइड करना है, and each box represent each group, each box represent each group. So how many boxes? 1 2 3 4, 1, each box represent one group, 1 2 3 4, so divided by 4, 8 divided by 4. How many circle in each group? It means how many circle in each box, हर बॉक्स में कितना कितना सर्किल है। You can see that 2 circle ना, 2 circles in each box. So what is answer? Now read the table of 4, टेबल 4 के टेबल पढ़िए, कितना टाइम्स में 8 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। What is answer? 2 is our answer. 2 is our answer. You can see that when we divide 8, जब हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे from 4 से डिवाइड करेंगे, so what is answer? Answer will be 2, and you can see that 2 circle in each group. Now come to the question number 2. Now in this question I have first we will count the number of total circle which I have drawn inside each all boxes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So first we will write 15. And how many boxes I have drawn? 1 2 3 4 5. So divided by 5. 15 is dividend, 5 is divisor। मैंने अभी बताया कि बड़े नंबर को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट हम लोग का जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद टाइम्स जिसको बोलते हैं, वो हम लोग का क्वोशिएंट होगा। तो read the table of 5 to know that 15 comes in how many times of table of 5। 5 की टेबल में 15 कितना टाइम्स में आता है, ये जानने के लिए हम लोग को 5 का टेबल रीड करना पड़ेगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। What is answer? 3 is answer। 3 is answer, and you can see that what is answer? 3। अब आप देख सकते हैं कि हर बॉक्स में कितना कितना सर्किल है, 3 3 1 2 3 1 2 3 लाइक दिस, इक्वल है, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं है, 3 3 सर्किल है।
साइकिल जो है हर बॉक्स में, तो व्हाट इज आंसर 3, सो दिस इज आंसर. एंड सम क्वेश्चन में आल्सो देयर, you will solve this fill in the blanks of page number 111. You, if you have problem, you can ask.